चलो, shall we start? Let me see. Hello, hello, hello. Chalo. So the last question that we did was repeated distribution method. The next method that we are using is simultaneous equation method. So let's understand what is required to be done. Simultaneous equation method में हम क्या करेंगे? Question number 3 पे आ जाओ. Everyone is there on question 3? Chalo, let's see what is the information. We have been provided with सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्सपेंस. कौन सा डिपार्टमेंट? देयर इज अ बॉयलर एंड देयर इज अ पंप रूम. In addition to this, we are also having production department A and B. So when we are talking about boiler house के खर्चे को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो 60% we are giving to A, 35% we are giving to B, but 5% we are giving to pump room. पंप रूम की बात करें तो 10%, 40% and 50% is given to boiler house. And by following which method? Simultaneous equation method, we would be required to solve this question. Fine. So let's understand everyone. आते हैं हम क्वेश्चन पे. बस लाओ, मच्छर नहीं मारना बहुत इसको पाचड़ निकाल. स्टडी मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 3. Understood. We have two service department. एक है बॉयलर हाउस जिसको कि मैं नाम दे रहा हूं B इज इक्वल टू. बॉयलर हाउस का खर्चा कितना है भाई? खुद का है 3 लाख प्लस पंप हाउस से भी कुछ आ रहा है ना? कितना आ रहा है पंप रूम से? 50%. सो आई विल पुट इन दिस वे 0.5 पंप रूम के लिए P. Got it? I hope you are understanding. Similarly, if we put P is equal to 60,000 तो है ही, प्लस कितना आ रहा है? 5% ऑफ B, तो 0.05 B. Everyone. So we can say that based on this is our equation 1. This is our equation number 2. Now either of this you can do. Either you can put the value of B into the formula of P, or you can put the formula of P into the value of B. So we would be doing what? Chalo, let's put value of B in equation 2. So now therefore we can say that P is equal to 60,000 plus 0.05 ब्रैकेट में 3 लाख प्लस 0.5 P. Got it? Find out the चलो वैल्यू ऑफ P. ये तो कर ही सकते हो तुम.
Find out the value of P. So 3 lakh into 0.05 is equal to 15,000, 75 हो गया वो। कितना आ रहा है? 76923 आ रहा है उतना? So it is coming 76923. This is what we got as a value of P. Now what we are going to do now, let's put value of P in equation 1 so that we can get the value of B, which is equal to 3 lakh plus 0.576923. We got into 0.5 plus 3 lakh 338,461 या तो 2 338,462 ना. This is the value of your B. Everyone understood? So now let's see what is done. We have calculated both the value. Please pay attention here now, just for a while. हमने दोनों की वैल्यू को ढूंढ लिया है भाई. हमने ढूंढा है 76923 and 33462. Now this is also to be allocated to A and B. A and B है ना production department, and this is also required to be allocated to A and B. So पहले boiler house का start किया हमने. This is the amount. तो प्रतीक, हाँ प्रतीक को बोल देना. Got it? 338462. Now this is distributed only 60 and 35%. Huh? Please be careful. 60 and 35% only to A and B. And this 7, 6, 10 and 40% only in this 2% you are giving. Everyone. फिर वहां कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कभी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें. अभी वही वाला रेशियो. तो उसका मतलब क्या हुआ? प्लीज एक ही मिनट ध्यान दे दो बेटा, फिर लिखना. इसका मतलब क्या है? ये 76 है ना, इन दोनों का टोटल 76 नहीं होगा, ना ही इन दोनों का टोटल होगा तुम्हारा 33462. वो इक्विवेलेंट अमाउंट ढूंढा है हमने सिर्फ आफ्टर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन. समझे कि नहीं? इसीलिए वो 50% जानबूझ के दिया था. 10, 40 एंड 50. अगर 1%, 2%, 5% में ना अपन ध्यान भी नहीं देते. गॉट इट और नॉट एवरीवन? चलो अब ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा टेबल बना दो. दिस वन.
हो गया? समझ में आया ना क्या किया? आपको एग्जाम में अगर आ सकता है तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है, या तो साइमल्टेनियस इक्वेशन आ सकता है। ट्रायल एंड एरर नॉर्मली नहीं पूछते हैं। ट्रायल एंड एरर इज नथिंग बट दैट रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, बट विथ सर्टेन एजम्पशन ऑफ राउंड ऑफ, दैट्स इट। बाकी कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच इज टू बी डन ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस। उसमें भी पहला डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो सेम ही रहेगा अपना, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अपन क्या करेंगे? अच्छा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया था? सबको दिया था, तीनों प्रोडक्शन को भी दिया था, सर्विस को भी दिया था। यहां पे ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ कहां पे देंगे? इस डिपार्टमेंट को, दूसरे सर्विस को। वहां से कहां लेके आएंगे? यहां पे। फिर यहां से कहां? यहां, यहां। in that way only within your service department, and then we will find out this amount, and then we need to round it off. This is round f to nearest 100 अगर करे तो क्या होगा? 504300 आफ्टर 50 है तो this is 585400। ये राउंड ऑफ वाली अमाउंट हम लेंगे, और ये राउंड ऑफ वाली अमाउंट इस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आई हुई अमाउंट के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो दिख रहा है राउंड ऑफ किया हुआ है, वही 45 45 15 जो रेशियो है ना, उसी रेशियो में सीधा एक बार में ही। लेकिन 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 हर जगह पे तुम्हें राउंड ऑफ करना है। देखो एवरीथिंग इज राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, एवरीथिंग इज राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। एम आई क्लियर? तो इस वाले टेबल में क्या फर्क है सिर्फ कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो तुमने क्वेश्चन 5 के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में विद इन सर्विस ही एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहेंगे। x to y, then revised amount of y to x, then x to y, then y to x, then x to y. Same thing you keep on doing. कहां तक? जब तक अगर आप हंड्रेड्स में रुके, देखो 146 तक रुके तो राउंड ऑफ टू 100। अगर आप 2 डिजिट में गए तो राउंड ऑफ टू 10। आ रहा है समझ में? यहाँ 146 पे अपन रुक गए हैं, अपन 14 15 तक नहीं गए यहाँ, इसलिए राउंड ऑफ किया है नियरेस्ट टू 100। गॉट इट और नॉट? अब जितना नजदीक जाओगे उतना राउंड ऑफ कम करना है फिर। एम आई क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? चलो क्विकली इसको भी कर लो, अगर कहीं से ऑल ऑफ सडन पूछ लिया तो वी शुड बी एबल टू आंसर। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वापस करने की जरूरत नहीं है, सीधा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज रिफर टू क्वेश्चन 5 पार्ट 1 ऐसा करके लिख देना। चलो आ जाओ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। Let's understand practice question number 1 is there on page number 67. Yes, everyone is there. Chalo, let's understand. See, these are the kind of question institute is asking, and if you are not having a practice of this ना, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा। फिर ये जो टाइम में होना चाहिए ना 15 मिनट में 10 मार्क का क्वेश्चन अगर है तो वो नहीं हो, इसलिए ध्यान देना। मल्टीपल क्वेश्चन करने का फायदा ये होता है कि तुम्हारे दिमाग में ना ऑटोमेटिक एक पार्ट के अंदर सॉल्यूशन के स्टेप बनने लगेंगे। चलो समझते हैं। ABC company has following account balances and a distribution of direct charges as on 31st March. ध्यान देना, हमारे पास है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है? मशीन शॉप एंड पैकिंग, दो है। मशीन शॉप है और है पैकिंग, ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। मशीन शॉप एंड पैकिंग बोथ। देन वी हैव सर्विस डिपार्टमेंट, general overhead relating to plant and stores and maintenance. These two are my service department. एक है this is part 1, जहां पे ओवरहेड्स को अलोकेट करके हमें दे दिया है।
तो सारे इनडायरेक्ट लेबर हो या मेंटेनेंस हो या मिसलेनियस सप्लाईज हो या सैलरी हो सुपरिटेंडेंट की, सारा हमें ओवरहेड अलोकेट करके यहां पे दे दिया है। पार्ट 1 यहां खत्म हुआ। अब आया हमारा पार्ट 2। ये ओवरहेड्स हैं जो कि हमें अभी अलोकेट करने हैं, इनका प्राइमरी अलोकेशन भी नहीं हुआ। गॉट इट? विच इज पावर, रेंट, फ्यूल, इंश्योरेंस, ट्रेड लाइसेंस फी, डेप्रिसिएशन। Am I clear or not, everyone? Then following data were compiled by means of the factory survey mode in the previous year. So I'll first put a number 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. So now understand. When we are talking about power, power is to be allocated on the basis of what? किस पे allocate करोगे? अच्छा 1 2 3 मैंने गलत जगह पे लिखा है बॉस, इट इज नॉट हियर, ये तो अपने डिपार्टमेंट के नाम है ना। 1 2 3 4 इज दिस 1 2 3 4 एंड 5, मैंने लिखा था गलत जगह पे। गॉट इट? सो पावर इज टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्स पावर, सो आई विल पुट इट 5 here. Rent on the basis of 1, fuel and heat, radiator number 2, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए, कुछ और है नहीं तो। ट्रेड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस किस पे एलोकेट करोगे? देख तो किस पे किया है पीछे, मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ही है ना पीछे भी। सो दिस इज टू बी अ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन अगेन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कहीं नहीं आया, ठीक है, आगे यूज होगा उसका। इसके बेसिस पे हमें ऊपर वाले ओवरहेड्स को अलोकेट करना है बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट, जिसमें से ये दो डिपार्टमेंट इज अवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड ये दो डिपार्टमेंट आर अवर सर्विस डिपार्टमेंट। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर एवरीवन? चलो, ये हो जाने के बाद अभी हमें पता तो चल गया कि दो सर्विस डिपार्टमेंट है। अब क्या करें? अब तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ओवरहेड का टोटल आ गया। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे? सर्विस डिपार्टमेंट को अलोकेट करना होता है हमें, कहां पे? प्रोडक्शन में। एक्सपेंस चार्ज टू स्टोर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सर्विस डिपार्टमेंट, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर डिपार्टमेंट बाय द फॉलोइंग परसेंटेज। इसके परसेंटेज दिए हुए हैं, लेकिन प्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ देखो परसेंटेज में है मशीन शॉप 50%, देन दिस इज 50%, पैकिंग 20% एंड जनरल प्लांट 30%। तो ये है एल से सिंगल रेसिप्रोकल वाला। गॉट इट और नॉट? एंड देन जनरल प्लांट ओवरहेड एक बार ये हो जाए उसके बाद टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, दैट इज ऑन नंबर 3। नंबर 3 उसके लिए दिया गया है, लेकिन किसके बेसिस? सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय। हाँ, बी केयरफुल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आप लेंगे 2:1 वाला रेशियो। गॉट इट? गॉट इट? तो यहाँ पे दो टेबल बनेंगे हमारे, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर तुम स्टार्ट सीधा यहां से कर सकते हो कि जहां जहां टोटल है, ये वाला जो टोटल हमें दिया गया है अलोकेटेड ओवरहेड, तो एक ये टोटल ले लो, ये टोटल ले लो, ये टोटल ले लो, ये टोटल ले लो, है ना? तो अलोकेटेड ओवरहेड एंड देन अलोकेशन ऑफ ओवरहेड नाउ। गॉट इट? जिससे तुम्हें टोटल ओवरहेड मिल जाएंगे। सर्विस डिपार्टमेंट का अमाउंट पकड़ो फिर, जिसे हमें देना है किसको? मशीन शॉप और पैकिंग को, लेकिन कॉलम 3 करने पड़ेंगे क्योंकि एक जनरल प्लांट को भी जा रहा है। तो सेकंड वाले का फॉर्मेट क्या रहेगा? पर्टिकुलर्स, जनरल प्लांट, मशीन शॉप, पैकिंग। गॉट इट और नॉट? वहां पे ओपनिंग में
प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टोटल एक बार लेके आएंगे अपन, और फिर स्टोर को अलोकेट करेंगे, टोटल मिलेगा जनरल का, इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वापस वापस स्टोर। समझ में आ रहा है ना जो बोल रहा हूँ मैं? ये दिमाग में बनाना, पहले तो मैं खाना बना दी था, फिर खाओ बड़े ओके फाइन, जनरल लॉर्ड भी लागू पड़ से। समझ में आया कि नहीं बेटा? चलो स्टार्ट डूइंग इट। हो जाएगा ना? क्या करूं मैं करूंगा उसमें टाइम ज्यादा जाता है। रेसिप्रोकल मेथड कब फॉलो करना होता है वो समझने के लिए ना, क्वेश्चन 2 पे आओ तो तुम्हें समझ में आएगा कि रेसिप्रोकल में तुम्हें सीधा समझ में आ जाएगा कि ये रेसिप्रोकल मेथड ही है। लुक एट द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन। What they are saying, that Modern Manufacturer Limited has 3 production department, P1, P2, P3, and there are 2 service department, S1 and S2. The details pertaining to which has been given. तो पहले 3 दिए गए हैं प्रोडक्शन, और दूसरे 2 कॉलम में दिए गए हैं, लास्ट 2 कॉलम में सर्विस। देखो पहला क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। सो दिस इज द अमाउंट of service department to be distributed. Got it? ये मिस हो जाता है। Then we have been provided with working hours, value of the machinery, horsepower, light point, square feet, floor space दिया हुआ है। तो ये सारे बेसिस हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 एंड 5 लिख देता हूं। अब नीचे हमें दिया गया है, द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। रेंट एंड रेट्स किस पे होगा? 5 नंबर पे। जनरल लाइटिंग, लाइट पॉइंट्स पे 4 नंबर पे। इनडायरेक्ट वेजेस, अच्छा यहाँ पे अपन वेजेस को ले सकते हैं बेस, वेल कीप इट एज अ 6। हेलो, या तो वर्किंग आवर भी ले सकते हैं, लेकिन वर्किंग आवर में सर्विस डिपार्टमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। देखो वर्किंग आवर लास्ट में नहीं है, वर्किंग आवर के अंदर आपके पास S1 S2 में कुछ नहीं है। सो आप जब क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफाइंग, यू हैव एन ऑप्शन इधर टू गो विद वर्किंग आवर्स और द डायरेक्ट वेजेस, व्हाटएवर यू वांट टू ऑप्ट यू कैन ऑप्ट, बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट सेइंग। तो उसको भी होल्ड पे रखते हैं, पहले आते हैं पावर पे, देखते हैं कौन सा अनयूज रहता है। पावर किस पे आएगा? 3 नंबर पे। डेप्रिसिएशन किस पे आएगा? 2 नंबर पे। सन्ड्रीज किस पे आएगा? सन्ड्रीज कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग आवर। हेलो, समझ में आया ना? तो इनडायरेक्ट वेजेस को वेजेस पे कर सकते हैं, सन्ड्रीज को वी शुड डू ऑन वर्किंग आवर बेसिस। लेकिन फिर भी बिकॉज वी नीड टू टेली एट द एंड आंसर विद द मॉड्यूल। देखो क्या किया है लास्ट में, किसके साथ? इनडायरेक्ट वेजेस को किस पे किया है? डायरेक्ट वेजेस, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 6 नंबर। सन्ड्रीज को किस पे किया है? दैट इज ऑल्सो ऑन डायरेक्ट वेजेस, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट वेजेस। अच्छा लॉजिक समझे क्यों ऐसा किया? अगर ऐसा नहीं करेंगे ना और वर्किंग आवर्स पे डाल देंगे सन्ड्रीज को भी, तो सर्विस डिपार्टमेंट को कोई अलोकेशन ही नहीं होगा। गॉट इट? तो ये वर्किंग आवर किस लिए दिए हुए हैं? आपको लास्ट में रेट ढूंढने के लिए। किसके लिए? रेट पर आवर ढूंढने के लिए। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर और नॉट एवरीवन? एग्जाम में नॉर्मली बेसिस भी आपको दे ही देते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? दे डू नॉट वांट एनी अजम्पशन। लेकिन हमें क्वेश्चन करके ये समझ में आना चाहिए, अगर नहीं दिया है तो, कि ये जो वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स जो कि इन 3 में ही है और यहाँ नहीं है, उसका मतलब ये आवर्स दिए गए हैं हमें रेट पर आवर ढूंढने के लिए। तो अब और कुछ नहीं बचता है, तो डायरेक्ट वेजेस को अपन बेस बना के ले सकते, बाकी और तो बिल्कुल सेट नहीं होता है। तो इस बेसिस पे अपन करेंगे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करेंगे अपन? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। बट बी केयरफुल, this is not the only thing which will go into service, this is also which will go into service, क्योंकि उनका वेजिस तो है ना भाई सर्विस डिपार्टमेंट का, तो ये मत भूल जाना। एम आई क्लियर एवरीवन? समझे कि नहीं समझे आप? गॉट इट? तो टोटल लाइन आइटम होगी वो होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
you should start with wages, सर्विस डिपार्टमेंट का सेट, गॉट इट। देन फिर रेंट और जनरल लाइटिंग और उन सबको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अच्छा, अब देखो, जब रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्वेश्चन कैसे इंफॉर्मेशन देता है? expenses of service department are allocated as under, they do not want you to have any assumption, clearly लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ परसेंटेज? हेलो, अब यहां पे तुम्हें नॉन रेसिप्रोकल assumption नहीं कर सकते because question has more specific information. So we need to determine the total cost of product X, which is process for manufacturing department PQ, sorry, P1, P2, P3, and 4, 5, and 3 hours respectively. Given that direct material cost is 50, direct labor cost is 30, we need to find out total cost. और यहाँ पे भी रेसिप्रोकल में भी कौन सी मेथड वो हमें नहीं बताया है, तो वहां पे भी वी हैव अ फ्रीडम टू यूज साइमल्टेनियस इक्वेशन या तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में से कोई एक करना। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपका टाइम कम जाएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन में। सो डू नॉट गो टू रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। आंसर राउंड ऑफ को छोड़ के ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, राउंड ऑफ की वजह से ही डिफरेंस आएगा, बाकी डिफरेंस नहीं आ सकता। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो एज अ फर्स्ट पार्ट यू ऑल आर डूइंग, लास्ट पार्ट जो है वो मैं आपको करूंगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार कर लो, फिर इक्वेशन बना के अपन आगे का पोर्शन करते हैं। आप सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एक बार कर लो। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना? चलो स्टार्ट डूइंग इट नाउ। आफ्टर primary distribution, we are going to follow simultaneous equation method. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारे जो सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड है ये यही आ रहे हैं आपके 4700 and 929, right? So if I need to prepare an equation, so I'll say that S1 is equal to how much? 4700, 4700 plus 0.1 S2, and S2 is equal to 929 ना, plus 0.1 S1. So considering this as our equation 1, consider this as our equation 2. Am I clear? Now what we are going to do? Now putting value of S1 in equation 2, जिससे क्या मिलेगा? S2 is equal to 929 plus 0.1 और 4700 plus 0.1 S2. Find out the value of S2. S2 therefore 470 plus 929 1399, तो यहाँ पे रहेगा 1399 plus 0.1 into 0.1 minus 1.99, 1399 divided by 0.99, 1413. Therefore S2 is equal to 1413. अब S2 की वैल्यू रखेंगे अपन S1 में। Now putting value of S2 in our equation 1, therefore S1 is equal to
4700 plus 0.11413 into 0.1 plus 4700 is equal to 4841. This is 4841. This is your S1. Am I clear or not, beta? Everyone understood? समझ में आया ना? Now what we need to do? Distribution of service department to production department. I'll put it in this way, particulars then we have P1, P2, P3. Got it? Everyone? पहले लिखेंगे क्या? अमाउंट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, अमाउंट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. कितना अमाउंट है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का? 7700. So 7700. Then we have 7300. So 7300. Then we have 9800. So 9800. ये रख दिया. अब करेंगे क्या अपन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1. अच्छा, क्या रेशियो है? कितना है? 70 ना. 20%, 30%, 40%, यही परसेंटेज लेने एब्सोल्यूट में हमें. So S1 is our 4841 into 20%. So 968. 4841 into 30%. 1452. 1452. And then rounded off. 1452 plus 968 minus 4841. 2421. 24. नहीं ऐसा नहीं कर सकते. आई एम सॉरी. हाँ, गलत 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 गलत. हमें सीधा 40% ही करना पड़ेगा. 4841 into 40%. I'm sorry. 1936. 1936. Got it? No. Now distribution of S2. 1413. 40, 20, 30. So 1413 into 0.4 is equal to 565. 1413 into 30 na. 40, 20. 20%. 283. Then 1413 into 0.3 is equal to 424. We need to do the summation of this three. 7700 plus 968 plus 565. 9233. 7300 plus 1452 plus 283 is equal to 9035. And then 9800 plus 1936 plus 424. 12160. 12160. ठीक है. अभी क्या करना है? Divided by number of hours, because we need a rate. Number of hours has been given in the question. 3070.
which is 3070, then 4475, 4475, then 2419, 2419. So we can have rate per hour. So 9233 divided by 3070, 3 rupees. Then 9035 divided by 4475, 2 rupees. 2.01 मतलब भैया 1210 divided by 2419, that gives me 5 rupees. मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ भाई, है ना. 325, दिस इज द रेट विच इज कमिंग, रेट पर आवर. अच्छा, सॉल्यूशन को देख लेते हैं अपन, उनका रेट क्या आ रहा है. एग्जैक्ट वही अप्रूवल तो हमने राउंड ऑफ किया, 5.0 से दिख रहा है ना ये रेट. 2.02 अपन ने तो राउंड ऑफ कर दिया, फिर भी 3, 2 और 5 तक. एम आई क्लियर. तो मतलब क्या है इसका, साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉलो करो या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करो, आंसर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. जो माइनर डिफरेंस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ राउंड ऑफ की वजह से हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता. एम आई क्लियर ऑन दिस. ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आ जाओ वापस. चलो, ये तो हमने रेट ढूंढा, उसके बाद क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है. वी नीड टू डिटरमिन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स process for manufacture in department P1, P2, P3 for this many number of hours. Direct material cost and direct labor cost has been given. तो चलो लास्ट में बनाएंगे अपन स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट. और प्रोडक्ट एक्स वी हैव direct material, we have direct wages, overhead for P1, for P2 and for P3. Direct material has been given how much, 50 and 30. So I'll put 50, I'll put 30. अब चाहो तो यहाँ टोटल करके प्राइम कॉस्ट ऐसा अलग दिखा सकते हो. अच्छा, इनके आर्ट्स क्या थे हमारे, 453. तो I'll mention 4, 5 and 3. The rate is 3, 2 and 5. So this is 12, this is 10, this is 15. Summation. So 80 plus 12 plus 10 plus 15, 117. Understood है ये everyone? हो गया. चलो, सबने लिख लिया ना, आ जाओ प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पे.
इस क्वेश्चन के बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, ये क्वेश्चन खत्म कर लेते। चल, Deccan Manufacturing Limited have 3 departments which are regarded as production department and service department. Service department costs are distributed to this production department using मेथड का नाम देखो, आया नहीं ना ऐसा नाम तो अब तक, ये कुछ भी नहीं है, मैं समझाऊंगा 2 मिनट में समझ में आया। स्टेप लेडर, ठीक है, मतलब 1 2 3 4, समझ में आ रहा है, 1 बाय 1 समझा आ जाएगा 2 मिनट में। Estimated factory overhead costs to be incurred by each department in the forthcoming year are as follows. Data required for distribution is also shown against each department. Production department XYZ has been given. We have been provided factory overheads for this department, labor hours, employees, area in square feet. And then below that we have been provided for service department. Here we have production department, PQRNS, उसके ओवरहेड, उसके लिए भी लेबर आवर्स, उसके लिए भी एम्प्लॉइज, उसके लिए भी स्क्वायर मीटर। ध्यान देना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में तो ध्यान देना, सिर्फ नाम ही है नया। ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 4 सर्विस डिपार्टमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम ऑर्डर। स्टेप लेडर के लिए ऑर्डर जरूरी, सेम ऑर्डर, क्या ऑर्डर, PQRS रिस्पेक्टिव, इसी ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना। स्टेप लेडर का फॉलो करेंगे वापस, जब मुझे रेसिप्रोकल नहीं करना हो तो पहले P का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। P का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अगर तुम्हें QRS को देना पड़ता है तो दो, फिर Q का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हेलो, अब P को नहीं देंगे क्योंकि P 0 हो चुका है, R और S को देंगे, फिर R डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब P Q को नहीं देंगे, सिर्फ S को देंगे। S जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सिर्फ प्रोडक्शन को देंगे। स्टेप लेडर, एम आई क्लियर और नॉट? ये स्टेप लेडर। तो स्टेप लेडर के लिए जरूरी क्या है और हमें क्या बोला गया है, यही ऑर्डर फॉलो करना है रिस्पेक्टिवली। फाइन। सो पी के लिए बेसिस क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, क्यू के लिए है लेबर आर, आर के लिए स्क्वायर मीटर और एस के लिए है डायरेक्ट लेबर आवर्स। हेलो, डायरेक्ट लेबर आर, एम्प्लॉय स्क्वायर मीटर, तो डायरेक्ट लेबर आर फॉर 2 थिंग्स। Understood. You are required to prepare a schedule showing distribution of overhead of the 4 service department to the 3 production department and calculate overhead recovery rate। कैसा आया समझ में? तो जस्ट तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ ना हो इसलिए एक बार सॉल्यूशन में दिखाता हूं जैसे कि तुम्हें समझ में आए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट एप्लीकेशन कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसलिए रिपीटेड नहीं है। अब स्टेप लेडर क्यों बोलते हैं उसको, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। हमें फॉलो कौन सा करना है, सीक्वेंस PQRS फॉलो करना है। तो पहले तो सारे ओवरहेड लिख दिए हमने, फिर अपन ने स्टार्ट किया P कौन से बेसिस पे करना है, क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो ये है आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो। तो 45 के सामने 45 को 0 कर दिया, लेकिन यहां पे देखो आप तो Q को भी मिला, R को भी मिला, S को भी मिला। गॉट इट? अब Q डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इट इज कंबाइंड अमाउंट विच इज -80,000। यहां पे बेसिस क्या है Q के लिए, डायरेक्ट लेबर आवर्स, लेकिन यहां हम P को नहीं देंगे, इनको देंगे और ये जो 2 बचे हैं उनको भी देंगे। एम आई क्लियर? तो अब तुम्हारा Q 0 हो चुका। R is now summation of this 3 and then that total is going out। समझ में आ रहा है ना? फिर अब ना P को देंगे ना Q को देंगे, ये जो रेशियो है कौन सा वाला रेशियो है यहाँ पे, वो रेशियो में वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट टू 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड ओनली S। गॉट इट? अब ये 0 हो गया। S के लिए इट इज अ समेशन ऑफ यहां तक का 66, एक भी सर्विस को नहीं देंगे,
रेट लेंगे अपन डायरेक्ट लेबर वाला ही, देखो ये 3 ही है, लेकिन सिर्फ दिया किसको, प्रोडक्शन को। टोटल करेंगे, डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आर, इसको डिवाइड करो डायरेक्ट लेबर आर से, आपको मिल जाएगा रेट। एम आई क्लियर? अच्छा, स्टेप लेटर क्यों बोला? अब जो जो मैंने ना यहाँ पे ये सर्कल किया है, will work like a steps, therefore it is a step ladder. Am I clear or not everyone? Understood? क्लैरिटी के साथ चलो फटाफट खत्म करो।